Hello everyone, so I welcome you all to this lecture, and in this lecture we will be discussing about bases. Okay, so acids तक हमने कंप्लीट कर लिया था, एसिड्स का क्लासिफिकेशन, उनका प्रिपरेशन और एसिड्स की प्रॉपर्टीज। हमने बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस भी डिस्कस की थी उसके अंदर। अब हमारा आ जाता है बेसिस। बेसिक का मतलब क्या होगा? ठीक है, तो bases are the substances like caustic soda, quicklime, caustic soda, which are bitter in taste and slippery to touch. As I have earlier also said you, it is not recommended to touch or taste any substance in the laboratory because it may be hazardous. So the bases are the chemical substances which have a bitter taste. All bases change the color of red litmus to the blue. A base is a compound which, when dissolved in water, produce hydroxyl ions as negative ions. A base has replaceable hydroxyl ions, according to Arrhenius concept. A base is either a metallic oxide or a metallic hydroxide. A base can be a metallic oxide. Metallic oxides are what? Bases. Or it can be a metallic hydroxide. When metallic oxides are dissolved in water, then they give rise to metallic hydroxides. Or aqueous ammonia, which release hydronium ion of an acid to form salt and water only. NaOH plus HCl give rise to NaCl plus H2O. ठीक है, इसी तरीके से जो है NaOH plus H2O give rise to Na positive plus OH negative, और CaO plus H2O give rise to CaOH all twice, which further produces ion Ca dipositive plus OH negative, 2OH negative। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो भले मेटेलिक ऑक्साइड हो या फिर मेटेलिक हाइड्रोक्साइड हो, वो आपका क्या होगा? बेस ही होगा। इसके बाद है बेसिक ऑक्साइड। अब बेसिक ऑक्साइड इज अ मेटेलिक ऑक्साइड दैट कंटेन ऑटो नेगेटिव आयंस एंड रिएक्ट विद एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली। तो कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड हो, ठीक है, वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी? सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगी। इसी तरीके से जो बेसिक हाइड्रोक्साइड है, वो भी वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी? सॉल्ट प्लस वाटर ही बनाएगी। ओके, तो एल्कलीज। Alkalis are the water soluble bases। ठीक है, alkalis are the water soluble bases। इसके बेसिस पे हमारी पीरियोडिक टेबल में एक सीरीज भी है जिनको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स, क्योंकि इनकी जो हाइड्रोक्साइड्स होती है, ठीक है, वो क्या होती है? वाटर में सॉल्युबल होती है। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। So alkalis are the water soluble bases that furnish hydroxyl ions in aqueous solution. An alkali is a basic hydroxide which, when dissolved in water, produces hydroxyl ion as the only negative ion. All alkalis are bases, but all bases are not alkalis. All alkalis are bases, but all bases are not alkalis. The insoluble bases are not known as alkalis, which are like ferric hydroxide, cupric hydroxide are bases but are not alkalis। ठीक है, NaOH हो गया, KOH हो गया, COH हो गया, they are alkalis। they are alkalis, they are dissolved in water। इसके बाद है आपका बेस। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, सॉल्युबल को अपन एल्कली बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्साइल आयन प्रोड्यूस करते हैं, एसिड प्लस बेस जो रेज टू सॉल्ट प्लस वाटर होता है। बेस भी इलेक्ट्रोलाइट होता है, कोरोसिव होता है नेचर में। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो कैसे होते हैं? कोरोसिव होते हैं। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। सबसे पहले डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड बेस एंड डाइल्यूट बेस। डिपेंडिंग ऑन एसिडिटी, मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस। ठीक है, तो ये हमारे बेस के टाइप्स है। स्ट्रेंथ के बेसिक बेस पे बात करें तो स्ट्रेंथ का मतलब है कि आप कोई भी जो है यहाँ पे मेटल हो सकता है। ठीक है, MOH, ठीक है, प्लस H2O गिव राइज टू M पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है,
strong bases are ionized 100% in water. Like suppose this is the equation. There is a metallic hydroxide MOH give rise to M positive plus OH negative. Okay. Initial number of moles of this is A, then 0, then 0. Then finally it is A minus X. This produced is X and this produces X. So this is the case of weak base. This is the case of weak base जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स भी होंगे और आयंस भी होंगे. स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस में आपका MOH गिव राइज टू M पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. A 0 0, finally this is 0 and this is A and this is A. So this happens in the case of a strong base where the bases are 100% ionized, where the bases are 100% ionized. Depending on its strength, the base can be a strong base, alkali metal hydroxides, alkaline earth metal hydroxides. The bases that ionize completely in the aqueous solution gives high concentration of hydroxyl ions are known as strong bases. The bases which are partially ionized in the aqueous solution gives less concentration of hydroxyl ions are known as weak bases. For example, ammonium hydroxide and calcium hydroxide. So when the bases are ionized less than 5%. Concentrated and dilute bases, when there is a high amount of base is present, then that is concentrated base. Dilute मतलब very less amount. तो हमारे पास में एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है 100% आयनाइज हुआ है, वीक बेस है 100% आयनाइज नहीं हुआ है. डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब बहुत कम मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस प्रेजेंट है. कंसंट्रेटेड मतलब अच्छे अमाउंट में जो है वो आयंस जो है वो प्रेजेंट है. Acidity. Acidity is defined for bases. The number of H plus ions a base can neutralize. ठीक है, the number of H plus ions a base can neutralize. या फिर the number of mono basic acid a base can neutralize, that is its acidity. ठीक है, या फिर सिंपल वर्ड्स में बोले तो बेस की एसिडिटी वो होती है कि वो कितने OH नेगेटिव रिलीज कर सकता है. जितने OH नेगेटिव रिलीज करेगा उतनी H प्लस न्यूट्रलाइज करेगा, या फिर उतने ही मोनो बेसिक एसिड्स को न्यूट्रलाइज करेगा. तो एक मोनो एसिडिक बेस है, वो एक मोल ऑफ H प्लस को न्यूट्रलाइज करता है, एक मोल NH4OH, KOH एंड NaOH. डाई एसिडिक COH और ट्वाइस, MgOH और ट्वाइस. ट्राई एसिडिक 3 जो है OH नेगेटिव जो है रिलीज वो करता है. डिपेंडिंग ऑन एसिडिटी, अगर एसिडिटी के बेसिस पे बात करें तो हमारा एसिडिटी ऑफ base is the number of hydroxyl ion that one molecule of that base gives on dissociation in water. It is the number of hydrogen ions of an acid with which a molecule of that base reacts to produce salt and water. For water insoluble hydroxides, acidity is equal to number of hydroxyl ions present in one molecule of that base. Depending upon acidity of a base can be differentiated as monoacidic base, diacidic base, triacidic base. Monoacidic base means a base that produces only one hydroxyl ion on dissociation in water per molecule. जो सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस करे ऐसे बेस को अपन क्या बोलेंगे? मोनोएसिडिक बेस. डाई एसिडिक बेस मतलब जो दो हाइड्रोक्सल आयंस प्रोड्यूस करे. ट्राई एसिडिक बेस मतलब जो तीन हाइड्रोक्सल आयंस जो है प्रोड्यूस करे. रिएक्शन इन विच बेस इज ऑब्टेन्ड, फॉर एग्जांपल जो भी मेटल्स की रिएक्शन जब आप वाटर के साथ कराओगे तो वो क्या देंगे आपको? मेटलिक हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ बेस, तो पहला हो गया आप मेटल की रिएक्शन डायरेक्टली जो है वाटर के साथ करा दो, लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दे आर आल्सो नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल. ठीक है. इसके बाद रिएक्शन बाय डिसॉल्विंग मेटेलिक ऑक्साइड्स इन वाटर. मेटेलिक ऑक्साइड आप कोई भी लो, CaO प्लस H2O, Al2O3, MgO, इनको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आपका क्या बनेगा? जो है मेटेलिक हाइड्रोक्साइड आपका बनेगा, जो कि क्या होंगे? बेस होगी.
इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस AlCl3 plus 3NaOH give rise to 3 NaCl plus AlOH whole thrice. Oxidation of sulfides Na2S give rise to Na2O plus SO2 और decomposition of carbonates CaCO3 give rise to CO plus CO2. तो आप जो है यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी बना सकते हो, जैसे कि AlCl3 plus NaOH give rise to NaCl plus AlOH whole thrice, या फिर सल्फाइड्स के ऑक्सीडेशन से Na2S plus O2 give rise to Na2O plus SO2, या फिर डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट लाइक CaCO3 गिव राइज टू Cu प्लस CO2। ये वाली रिएक्शन जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये डबल डिस्प्लेसमेंट जो लिखी है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। इसके बाद है डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट्स MgNO3 गिव राइज टू MgO प्लस NO2, लेड नाइट्रेट गिव राइज टू PbO प्लस NO2 प्लस O2। ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बाद वाली क्योंकि एनसीईआरटी में है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स याद रखने हैं। NO2 प्लस O2 बनता है कब? लेड नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन से। ठीक है। इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ बेसिस। प्रिपरेशन ऑफ बेसिस अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो पहला अपना था क्या? बाय एक्शन ऑफ रिएक्टिव मेटल्स लाइक कैल्शियम पोटेशियम सोडियम। ठीक है, विद वाटर। अगर आप कैल्शियम पोटेशियम सोडियम जैसे सब्सटेंसेस की वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे, एल्कली मेटल्स के एल्कलाइन मेटल्स, तो आपको क्या मिल रहा है? बेसिस। by action of water on metallic oxides like sodium oxide, potassium oxide, calcium oxide, Na2O की या फिर कैल्शियम ऑक्साइड की, किसी की भी आप रिएक्शन वाटर के साथ कराओगे मेटलिक ऑक्साइड की या फिर MgO की, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? बेस मिलेगा। बाय डबल डिस्प्लेसमेंट AlCl3 की रिएक्शन करा दो NaOH के साथ, तो आपका NaCl प्लस AlOH बन। अब है बाय एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल्स, मेटल की रिएक्शन डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ करा दी जाए तो भी आपको क्या मिलता है? मेटेलिक ऑक्साइड मिलती है, जिसको वाटर में डिसॉल्व करके आप अगेन मेटेलिक हाइड्रोक्साइड यानी बेस बना सकते हैं। बाय एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल सल्फाइड्स, सल्फाइड्स की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ कराई जाए तो SO2 प्लस जो है मेटेलिक ऑक्साइड मिलती है, मेटेलिक ऑक्साइड को अगेन आप वाटर में डिसॉल्व करके हाइड्रोक्साइड। बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट्स CuCO3 गिव राइज टू CO प्लस CO2, MgCO3 गिव राइज टू MgO प्लस CO2। ठीक है, या फिर नाइट्रेट्स ZnNO3 ऑल ट्वाइस गिव राइज टू ZnO प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, तो ये सभी क्या है? आपके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। दो बार रिवाइज कर लिए, एक बार वैसे लिखा होगा उसमें हो गए और ऐसे हो गए। ठीक है, soluble bases like sodium hydroxide and ammonium hydroxide can be formed by slag lime and ammonia respectively। अमोनिया की रिएक्शन वाटर के साथ कराओगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो दिस इज वी हैव डन। ओके, तो अगर आप स्लेट लाइन की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ कराते हो तो NaOH प्लस CaCO3 बनता है। अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो आपका NH4OH मिलता ही है। ठीक है, अमोनिया जो है एक लेविस बेस है। ऐसा बेस है लेविस बेस। बेस भी जो है तीन तरीके के होते हैं। ठीक है, अरीनियस, ब्रॉन्स्टेड एंड लेविस। लेविस बेस वो होते हैं जिनकी लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी हो, लाइक अमोनिया। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड बेस वो होते हैं जो H प्लस को एक्सेप्ट करके NH3 प्लस H पॉजिटिव गिव राइज टू NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। अरीनियस बेस वो होते हैं जो OH नेगेटिव प्रोड्यूस करते हैं, लाइक NaOH गिव राइज टू Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की अगर अपन बात करें, सबसे पहले हमारा लिटमस सॉल्यूशन टर्न्स रेड टू ब्लू, मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज टू येलो, फिनोल्फथालीन कलरलेस टू पिंक।
ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज जो है, ऑरेंज टू येलो हो जाता है किसमें, बेसिक सॉल्यूशन में। और लिटमस जो है रेड टू ब्लू हो जाता है, फिनोक्सिलिन जो है कलरलेस टू पिंक हो जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में क्या क्या एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले टेस्ट, बिटर टेस्ट है। सेकंड, फिजिकल स्टेट, दे आर सॉलिड्स और लिक्विड्स जनरली, दे चेंज कलर ऑफ द इंडिकेटर्स, लाइक लिटमस को रेड टू ब्लू करेगा, मिथाइल ऑरेंज को ऑरेंज टू येलो करेगा, फिनोक्सिलिन को कलरलेस टू पिंक करेगा। They are good electrolytes. Bases dissociate into ions on dissolving in water. Therefore, they conduct electricity to show the electrolytic property. They have corrosive action. Strong bases or alkalis such as NaOH are corrosive bases. ठीक है, they show slight burns. ठीक है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो बेस प्लस एसिड गिव राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर, दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हिच इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हिच इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, रिलीजेस एनर्जी 57.1 किलोजूल पर मोल, तो दैट इज, एंड आल्सो it is a double displacement reaction, which is reaction of acid with base, acid plus base give rise to salt plus water। इसके बाद रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन जो है बेस की थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहली बात तो एनसीईआरटी में भी गिवन है। ठीक है, तो बेस जैसे कि NaOH जो है लेस रिएक्टिव मेटल जो है वो ही इस रिएक्शन को शो करेंगे मोर रिएक्टिव बेस के साथ में। ठीक है, तो बेस जो है आपका हाईली रिएक्टिव होना चाहिए, मेटल जो आपका लेस रिएक्टिव होना चाहिए। जैसे सोडियम थोड़ी ना NaOH के साथ ही रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे जिंक प्लस NaOH गिव राइज टू Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। Na2ZnO2 को बोलते हैं सोडियम जिंकेट। दिस रिएक्शन इज गिवन इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, दैट्स व्हाई दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। इसके बाद है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एल्कली प्रेसिपिटेट्स एंड insoluble hydroxides of heavy metals from the solution of their salts like copper, zinc, iron। तो जो है CuSO4 plus NaOH give rise to CuH aldehyde plus Na2SO4, ZnSO4 plus NaOH give rise to ZnOH aldehyde plus Na2SO4। ठीक है, not the hydroxides of zinc, aluminium and lead being amphoteric or KOH, but other heavy metal hydroxides do not dissolve and form precipitate only. Zinc hydroxide plus NaOH give rise to Na2ZnO2 plus H2। Action of non-metallic oxide, non-metallic oxide की अगर हम बात करें 2NaOH plus CO2 give rise to Na2CO3 plus H2O। Magnesium hydroxide MgOH plus SO2 give rise to MgSO4 plus H2O। Here non-metallic oxide react with metallic hydroxide which is a base, produce salt, and this is similar to reaction between a base and acid। तो अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है जैसे कि SO2 MgOH ऑल्टो इसके साथ रिएक्ट करके MgSO4 बना रहा है, तो ये बेस प्लस एसिड ही है। SO2 क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। तो इस तरीके से, इसी तरीके से NaOH प्लस CO2 है, तो ये भी आपकी बेस प्लस एसिड ही है। NaOH जो है, NaOH का जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, पहली बात तो उसको डिसॉल्व फॉर्म में रखा ही नहीं जाता है, NaOH को क्रिस्टलाइन फॉर्म में रखा जाता है। ठीक है, अगर इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है तो क्या होता है, CO2 आके उसमें डिसॉल्व होने लग जाती है और Na2CO3 बन जाता है, मतलब मिक्सचर बन जाता है वो दो प्रोडक्ट्स का। रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O प्लस NH3। NH3 की जो है पंजेंट स्मेल होती है। ठीक है, इतनी सारी रिएक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बट ये जैसे the ZnOH aldehyde plus NaOH give rise to Na2ZnO2 plus H2O, ये रिएक्शन है। ठीक है, एक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ये पूछ सकते हैं आपसे, मतलब आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद बेस प्लस एसिड गिव राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर, बेस प्लस मेटल गिव राइज टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, बेस प्लस ZnSO4 और CuSO4 गिव राइज टू जिंक हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सॉल्ट।
base plus non-metallic oxide gives rise to salt plus water, base plus अमोनियम सॉल्ट gives rise to salt plus अमोनियम plus वाटर। तो ये आपकी समरी होगी, जो अपन ने 5 रिएक्शन अभी पढ़ी है वो क्या क्या पढ़ी है। बेस प्लस एसिड गिव राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर, बेस प्लस मेटल गिव राइज टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सोडियम जिंकेट वाली, बेस प्लस Zn4 और CuSO4 गिव राइज टू जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस CuSO फोल्टेज प्लस सॉल्ट, बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लाइक CO2 गिव राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर, बेस प्लस अमोनियम सॉल्ट आल्सो गिव राइज टू सॉल्ट प्लस अमोनियम प्लस वाटर। यूजेस ऑफ बेसिस, यूजेस ऑफ बेसिस की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले जिस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH used in the manufacture of soaps, textiles, paper and medicines, in the refining of petroleum, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर अपन बात करें, इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ सीमेंट एंड mortar, इन द ब्लीचिंग पाउडर, इन व्हाइट वॉशिंग, इन रिमूविंग एसिडिटी ऑफ क्लोथ्स। अगर आपको किसी का भी कुछ भी इंडस्ट्रियल यूजेस याद भी नहीं आ रहा एग्जाम में सॉल्व है तो आप उसमें इंडस्ट्रियल यूजेस लिख सकते हो, ठीक है, यूज्ड इन इंडस्ट्री, यूज्ड इन लेबोरेटरी, ठीक है, ये दो यूज तो आप लिख ही सकते हो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एज अ रिएजेंट इन द लेबोरेटरी, सभी यूज होते हैं रिएजेंट इन द लेबोरेटरी की तरह, in making fertilizers, rayon, plastic dye, potassium hydroxide in making salts and soap, in batteries, aluminum hydroxide in the preparation of aluminum sulfate, which is a foaming agent in the fire extinguisher. Magnesium hydroxide used as an anti-acid in the during acidity. तो स्टोमक में जब एक्सेस ऑफ HCl प्रोड्यूस हो जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एसिड को यूज, एक बेस को यूज करते हैं लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। कैल्शियम ऑक्साइड CaO2 क्लाइंग यूज्ड एज ए ड्राइंग एजेंट एज अ बेसिक फ्लक्स इन द मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है, एंटी एसिड है, MgOH although it is taken in more amount than required, it produces more ulcers, it triggers the production of more HCl। अगर इसको जरूरत से ज्यादा अमाउंट में ले लिया जाए तो इसकी ये एक लिमिटेशन है, इसको एक फिक्स्ड अमाउंट में तरीके से ही लिया जा सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें टेबलेट्स की, ठीक है, तो जो एंटी एसिडिटी के लिए यूज होती है, रेंटेक जेंटेक ये सब क्या होती है, एसिडिटी के लिए मार्केट में अवेलेबल होती है। इसके बाद है एम्फोटेरिक नेचर ऑफ Al2O3, ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, बट कुछ ऑक्साइड्स ऐसी हैं जो एम्फोटेरिक नेचर शो करती है, ठीक है, जो क्या शो करती है, एम्फोटेरिक नेचर शो करती है। एसिड जो ऑक्साइड्स होती है वो एसिडिक हो सकती है, बेसिक हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है। न्यूट्रल ऑक्साइड का हमारे पास में एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड, ना तो एसिडिक है ना बेसिक है। CO2 जो है वो एसिडिक है, ठीक है। बेसिक में अगर अपन बात करें तो बेसिक में जो है आपका मेटेलिक ऑक्साइड जनरली, ठीक है, लेकिन कुछ हमारी जो है मेटेलिक ऑक्साइड जो है आपकी, जैसे कि Al2O3 plus HCl give rise to LCl3 plus H2O, and Al2O3 plus NaOH give rise to NeAlOH whole 4, which is known as sodium aluminate plus water। तो Al2O3 क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर है, Al2O3 क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर है, Al2O3 एम्फोटेरिक इन नेचर है, इसीलिए इसीलिए जो है ये इसको इम्पोर्टेंट है याद रखना। एनहाइड्रेट ऑफ नाइट्रिक एसिड की अगर अपन बात करें N2O5, एनहाइड्रेट ऑफ नाइट्रस एसिड इज N2O3, एनहाइड्रेट ऑफ नाइट्रस एसिड इज N2O3, ठीक। इसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो बेसिकली होता क्या है भाई, एसिड्स और बेसिस में तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की अगर अपन बात करें, एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, और जो अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड है ये डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH नेगेटिव आयंस। Heat of neutralization of strong acid and strong base has a fixed value, that is minus 57 kilojoule per mole or minus का 13.7 kilocalorie per mole. Here negative sign represents the heat released during the neutralization process. Heat of neutralization
For weak acids or weak bases, by strong base or strong acid is relatively less than minus 137 kilocalorie per mole or 13.7 kilocalorie per mole or 57 kilojoule per mole. This is because some amount of heat is utilized in the dissociation of the weak component. Remember, the process of dissolving an acid or base in water is highly exothermic process. In order to avoid splash or explosion due to heat released, acid or base are mixed slowly in water with constant stirring. Water is never mixed in acid or base. ठीक है? तो जो ये प्रोसेस है ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है नेचर में. तो स्प्लैश को अवॉइड करने के लिए हम जो है एसिड या बेस को स्लोली क्या करते हैं वाटर में ऐड करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप. ठीक है. कभी भी जो है वाटर को एसिड में ऐड नहीं किया जाता. ठीक है. वाटर को डायरेक्टली एसिड में ऐड नहीं किया जाता. ठीक. अगर वाटर को एसिड में ऐड किया जाएगा तो वो क्या करेगा स्प्लैश आउट करेगा कंटेनर. Slake lime COH twice reduce the acidity of the soil. Antacids like MgOH twice is used to treat acidity by neutralizing HCl in the stomach. Sting of ants contain formic acid. Formica means होता ही है red ant, which is neutralized by rubbing shock. Sting of wasp contain an alkali which can be treated by neutralizing it with vinegar or citric acid. Lithium hydroxide is used to neutralize CO2 exhaled by astronauts in the spaceships. तो ये क्या हमारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के यूजेस हैं कि भाई COH को इसको ऐड किया जाता है एसिडिटी ऑफ सॉइल को रिड्यूस करने के लिए. एंटी एसिड MgOH ट्वाइस. ठीक है. स्टोमक के HCl को न्यूट्रलाइज करता है. Sting of ants formic acid can be neutralized by rubbing salt, and sting of wasp that contain alkali can be neutralized by vinegar or citric acid. ठीक है. लिथियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज CO2 यूज्ड इन स्पेस सिप्स. इसके बाद आ जाता है हमारे इंडिकेटर्स. ठीक है. इंडिकेटर्स की अगर अपन बात करें इंडिकेटर्स आर द केमिकल्स व्हिच चेंजेस देयर कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस. दे मे बी नेचुरल और सिंथेटिक. Litmus, turmeric are the example of natural indicators, whereas methyl orange and phenolphthalein are the example of synthetic indicators. Universal indicator is a mixture of certain indicators in required proportions, which show color changes over a considerable pH range. There are substances like vanilla, onion, clove oil, by which change in their order smell indicate whether the sample solution is acidic or basic. They are called as olfactory indicators. They are called as olfactory indicators. जैसे कि वनीला, ऑनियन हो गया, क्लोव ऑयल हो गया, इन्हें हम क्या बोलते हैं olfactory indicators बोलते हैं. तो जैसे मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज एसिड में क्या रहेगा रेड रहेगा, एल्कली में कैसा हो जाएगा येलो हो जाएगा. फिनोल्फथालीन की बात करें एसिडिक में और न्यूट्रल सॉल्यूशन में रहता है कलरलेस और बेसिक में हो जाता है आपका पिंक. ठीक है. मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड. ठीक है. न्यूट्रल में एच. ठीक है. और एल्कली में येलो. लिटमस की अगर अपन बात करें टर्म्स ब्लू लिटमस रेड एंड रेड लिटमस ब्लू और न्यूट्रल में एच रहेगा. तो हमारे पास में कुछ है जिससे हम इनको देख सकते हैं कि मिथाइल ऑरेंज रेड में रेड रहता है. ठीक है. तो जो मिथाइल ऑरेंज जो है एसिडिक सॉल्यूशन में रेड टर्न हो जाता है, बेसिक सॉल्यूशन में येलो टर्न हो जाता है और न्यूट्रल सॉल्यूशन में ऑरेंज कलर में रहता है. फिनोल्फथालीन एसिडिक सॉल्यूशन में और न्यूट्रल में रहता है कलरलेस, बेसिक सॉल्यूशन में हो जाता है पिंक. Blue litmus turns red in the acidic solution. There is no color change in the basic solution and neutral में भी no change. Red litmus solution में acidic solution में होता है no change, basic में blue हो जाता है और neutral में no change. Litmus solution क्या है basically? Litmus solution is a purple dye which is extracted from a plant belonging to the division Thallophyta named as lichen and is commonly used as an indicator. When the litmus solution is neither acidic nor basic, its solution is purple. There are many other natural materials like red cabbage itself purple in color.
It turns red in an acid and green in the basic solution. Turmeric is yellow in color. It remains yellow in acidic and neutral solution, but turns deep brown in the basic solution. तो टर्मरिक में अगर बेस ऐड करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? डीप ब्राउन हो जाएगा. Colored petals of some flowers like hydrogenia, petunia, geranium, china rose, which indicate presence of acid or base in a solution. They are simply acid-base indicators or simply indicators. इसके बाद हम आ जाते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस पे. अगर अपन बात करें एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर की, तो जब H प्लस की कंसेंट्रेशन OH नेगेटिव इक्वल है, ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं. उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बोलते हैं. जब H प्लस की कंसेंट्रेशन ग्रेटर देन OH नेगेटिव है, नंबर ऑफ H प्लस आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन OH नेगेटिव है, कंसेंट्रेशन H प्लस की ग्रेटर देन OH नेगेटिव है, तो हम बोलते हैं एसिडिक सॉल्यूशन. ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में हमने H प्लस या OH नेगेटिव को एनक्लोज किया हुआ है, इसका मतलब है कंसेंट्रेशन. बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा? OH नेगेटिव की यानी हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी. pH is the negative log of H plus. pH का मतलब होता है क्या? Negative log of H plus. Greater the concentration of H plus ions, less will be the pH and more will be the more acidic will be the solution. pH scale is an important only for dilute acids or bases. pH of solution depends upon temperature. pH किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई H प्लस और OH नेगेटिव अगर इक्वल है तो अपन उसे क्या बोलेंगे? न्यूट्रल. H प्लस ज्यादा है तो उसे बोलेंगे एसिडिक. OH नेगेटिव ज्यादा है तो उसे बोलेंगे बेसिक. ठीक. इसके बाद में pH का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस. pH का फॉर्मूला क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस. ठीक है. pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस. मोर इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, लेस इज द pH. जब H प्लस की कंसंट्रेशन बहुत कम है, ठीक है, तो पीएच क्या है? ज्यादा है उस टाइम पे. पीएच क्या है उस टाइम पे? ज्यादा है. इस कॉन्सेप्ट को, पीएच वाले कॉन्सेप्ट को जो है हम डिटेल में तो 11th क्लास में आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर आता है, वहां पे अपन इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं. अभी के लिए इतना. अगर pH इज इक्वल टू 7 है तो वो न्यूट्रल होगा. pH ग्रेटर देन 7 है तो बेसिक होगा. pH लेस देन 7 है तो वो क्या होगा? एसिडिक. pH की जो वेरिएबिलिटी है वो एट 25 डिग्री सेल्सियस. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. This whole concept is valid at a fixed temperature which is 25 डिग्री सेल्सियस. अगर टेम्परेचर अलग है तो ये कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है. ठीक है. इसके बाद है हमारे यूजेज ऑफ पीएच वैल्यू. यूजेज ऑफ पीएच वैल्यू क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव. ठीक है. लिविंग बींग्स कैन सर्वाइव ओनली इन नैनो रेंज ऑफ पीएच चेंज. ह्यूमन बॉडी works with pH range 7 to 7.8 due to acid rain pH of river water lowers and survival of aquatic life in such river becomes difficult. ठीक है. pH change causes tooth decay. Tooth animal is made up of calcium phosphate. It is the hardest substance in the body and can get corroded with at pH in mouth below 5.5. Bacteria produced present in mouth produce acids by degradation of sugar and food particles into the mouth after eating. Therefore, the best way to prevent this is to clean the mouth after eating. Tooth decay can also be prevented by using toothpaste, which are generally basic for cleaning teeth. This can also neutralize the excess acid. pH in our digestive system in our stomach, hydrochloric acid is produced, which helps in digestion of food. During indigestion of the stomach produces too much acid that causes pain and irritation. To overcome this suffering, antacids are used. ठीक है, like milk of magnesium, magnesium hydroxide. Self-defense by animals through plants and animals, like honeybee sting contain an acid, ठीक है, which causes pain and irritation. By applying baking soda can remove that, can neutralize that acid. Okay. Similarly, hair of nettle leaves injects methanoic acid, causing burning sensation. So, what we do is we rub the area with a dog plant. This is given in the NCERT textbook.
तो दो प्लांट है, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये आसपास ही ग्रो करते हैं। मतलब जहाँ पे भी नेटल लीव्स वाला पौधा होगा वहां पे कहीं ना कहीं आसपास स्टॉक प्लांट वाला भी होगा। तो नेटल लीव्स जो है वो मिथेनोइक एसिड जो है, अगर उसको हाथ लग जाए तो उसके कांटे से मिथेनोइक एसिड आपकी बॉडी में इंजेक्ट हो जाएगा, और जो कि बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। और रेमेडी इसकी क्या है कि डॉग प्लांट को अगर उस पर रब किया जाए तो उसको क्या कर देता है, रिलीफ पहुंच कर। In brewing, pH values are strictly controlled by for wines for the desired flavor. pH value of soil is tested to enhance growth of crops in acidic or alkaline soil. pH value of milk is controlled in dairies. Depending on pH values of skin secretion, different soaps for oily and dry skin are prepared. The tarnished surface of copper vessel due to formation of basic copper carbonate can be cleaned by rubbing lemon, which is acidic in nature. Which is acidic in nature. So that is it. That's all for today. Thanks for watching the lecture.